D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भड़ाई का नमस्कार। आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की हॉली सिटी स्थित कोठी में हम पहुंचे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों की ओर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर एक पूरा जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मास्टर हरपाल सिंह वेरका। उनसे बात करते हैं कि ये नवजोत सिंह सिद्धू कब आएंगे और क्या ये जो अमृतसर की हॉली सिटी स्थित जो उनकी कोठी है, क्या आने वाले समय में ये पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों को केंद्र बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हरपाल जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਢੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤਾਜ 'ਚ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਖਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਕਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌੜ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੌਤਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। 2022 ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 100 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 80 MLA ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, MP ਨਾਲ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ? 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ मैं कुछ कह नहीं सकता भी सिद्धू अमृतसरों लड़ देगा पटियाले, मैं तो एवं गलत गाइड करता। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं, इनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे या पटियाला से लड़ेंगे, या वह चुनाव अब बैठकर केवल रणनीति बनाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, इन्हें कुछ पता नहीं है। हम आपको ये बता दें कि नवजोत सिंह आज सावन महीने का पहला सोमवार है और नवजोत सिंह सिद्धू की इस कोठी में एक भव्य शिवाला मंदिर भी बना हुआ है और इसके साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी उन्होंने यहाँ पर करवाया हुआ है।
यहाँ पर एक पंडित हैं पूरे यहाँ पर जो आते हैं, जो हर दिन पूजा होती है उस शिवालय में, लेकिन फिलहाल हम आपको वहाँ दर्शन जरूर करवाते ले चलते, लेकिन फिलहाल वहाँ पर जाने की ओर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। अगर अब हम यूं कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू की अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकमान को स्पष्ट कह दिया था कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान के पद पर मान्य नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकातें करनी शुरू कर दी थी। हालांकि इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जो विरोधी माने जाने वाले हैं प्रताप सिंह बाजवा सांसद, उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुलह कर ली और वो भी मुखर हो गए थे। और कल हम आपको ये भी बता दें, दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा की कोठी पर तमाम सांसद भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन इसी बीच कल शाम को नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के आदेश दिल्ली से जारी कर दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को इकट्ठा लेकर साथ कैसे चलते हैं, क्योंकि दोनों जो जट सिख हैं वो इनको आपस में इनका इकट्ठे होना कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। हम आपको याद दिला दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने आज से लगभग 4.5 साल पहले कांग्रेस का दामन थामा था। तब वे भाजपा से यहाँ पर छोड़कर आए थे। तब ऐसी चर्चा थी कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, ऐसी चर्चाएं हैं कि तब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर पहले तो सहमति दे दी थी। इसीलिए उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू इसी कोठी में बैठकर, जब वो CPS थी, मुख्य संसदीय सचिव थी काली भाजपा सरकार में, आम आदमी पार्टी की नीतियों के गुण गाती थी। लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी में विद्रोह की चिंगारी फूटी। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के माध्यम से कांग्रेस में कदम रखा था और उन्हें जीत हासिल हुई। वह लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाए गए। तब वह ये कहते नहीं थकते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते थे कि उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पिता समान हैं। तब जब आपको याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जब शपथ लेनी थी, तब नवजोत सिंह सिद्धू को भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे नाराज थे। वह नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जाएं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में गए और वहां पर जनरल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जावेद बाजवा, उनके साथ जफ्फी डाली, जिसके साथ बहुत विवाद हुआ था। तब उसके बाद जब लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के पक्ष में कई जगह प्रचार किया। तब एक पत्रकार की ओर से सवाल पूछा गया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही सवाल उठा दिए थे और उन्होंने ये कहा था, कौन कैप्टन? माई कैप्टन इज राहुल गांधी। इससे भी नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मतभेद बढ़ गए और मनभेद हो गए। फिर जब 2019 में चुनाव हुए लोकसभा, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से यह कह दिया गया कि उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वे अपने दम पर यहाँ पर जो 13 की 13 संसदीय सीटें हैं वो जिताने में सक्षम हैं जहाँ। लेकिन फिर कई जगह पर सिद्धू प्रचार करने नहीं आए। बठिंडा में उन्होंने प्रचार किया तो बठिंडा में तब उन्होंने स्टेज से यह कहा, पंजाब में जो है फिक्स्ड मैच चल रहा है। तब उनका ये कहना था कि बरगाड़ी कांड को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल परिवार के साथ मिले हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब फिर धीरे धीरे दोनों नेताओं में खटास बढ़ती गई। तब खटास और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया गया। अब सबसे अहम सवाल ये है, 2 साल के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके साथ 4 कार्यकारी प्रधान लगा दिए गए हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू इन चारों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का उन्हें क्या साथ मिलेगा या इन दोनों नेताओं में द्वंद्व जारी रहेगा, क्योंकि लड़ाई अभी इनकी शुरू हुई है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री पद के दावेदारी तक जाएगी कि 2022 में आखिरकार कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाती है। ये सबसे अहम सवाल होगा। नवजोत सिंह सिद्धू अब अपनी इस कोठी में बैठकर क्या पंजाब की राजनीति को चलाएंगे या फिर पटियाला या चंडीगढ़ को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सामने सरेंडर कर देंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और वर्चस्व के लिए
नवजोत सिंह सिद्धू से दो चार करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए परिस्थितियां खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय कांग्रेस में उथल पुथल चल रही है, एक बात तो तय है, दोनों को आला कमान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए कौन कौन महत्वपूर्ण है। यदि यूं कहा जाए कि अब कांग्रेस में महाभारत शुरू हो गई है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार को जिस तरह से घेरते रहे हैं, बेअदबी कांड हो, बेअदबी का मुद्दा हो, बरगाड़ी कांड हो, शराब माफिया हो, केबल माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते, बिजली को लेकर ये कहते रहे हैं कि उनका जो मॉडल है वो लागू नहीं किया गया, जबकि पंजाब की जनता को महंगाई से निजात मिल सकती थी। मौजूदा परिदृश्य में जो लग रहा है कि अगर ये आला कमान थोड़ी सी भी गलती करता है तो ये जो चल रही है लड़ाई महाभारत में बदल सकती है। असली संघर्ष तो मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू होगा। भले ये कहा जा रहा हो कि आगामी चुनाव में भी कैप्टन ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन ना तो सिद्धू का मिजाज संगठन का है और ना ही कांग्रेस आला कमान अपने निर्णय पर अडिग रहता है। इसका जो ताज़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश में उसने अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और छत्तीसगढ़ में ये भूपेश बघेला को, राजस्थान में सिर्फ अपवाद रहा जहां उन्होंने सचिन पायलट के अध्यक्ष रखते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, वहां राजनीतिक समीकरण अलग थे। कांग्रेस आलाकमान ऐन मौके पर क्या कर सकता है, पड़ोसी हरियाणा के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वहां उन्होंने चुनाव कराए थे भजनलाल के नेतृत्व में और 10 जनपद ने मुख्यमंत्री बना दिया था भूपिंदर सिंह हुड्डा को। अब क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कमज़ोर हो गए हैं? ये भी राजनीति चर्चा गलियारे के चर्चा में है, क्योंकि कैप्टन कांग्रेस के अलावा अकाली राजनीति के भी खिलाड़ी रहे हैं। भले कैप्टन को बुजुर्ग की श्रेणी में मान लें, लेकिन पंजाब की सियासत में कोई बूढ़ा नहीं होता। 93 साल के प्रकाश सिंह बादल आज भी बेडरूम से राजनीति कर रहे हैं। कैप्टन में जज्बा आर्मी जैसा है, लेकिन जीवन और कार्यशैली राजसी है। सियासी तौर पर ये इतनी आसानी से कैप्टन हार मानेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब पंजाब को क्या दोबारा कांग्रेस को दोबारा पंजाब में सत्ता में लाने के लिए क्या ये दोनों नेता एकजुट होकर चलेंगे या फिर इनकी लड़ाई जारी रहेगी? क्योंकि अगर ऐसी लड़ाई रहती है तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के वर्चस्व की जंग में नुकसान कांग्रेस का हो। और सबसे अहम बात यह है, अगर यूं कहा जाए कि राजनीति में कुछ भी जो है वो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो विरोधी है कल को वो आपके साथ चल सकता है, मतलब आपका दोस्त बन सकता है। अब जो लोग पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, उनके चौखट पर जा रहे थे, हो सकता है वो नवजोत सिंह सिद्धू की चौखट पर आ जाएं। लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति गरमाएगी, क्योंकि मुख्य टक्कर जो है वो दो आपस में श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में है। भाजपा को लगातार किसानों का विरोध सहना पड़ रहा है, इसलिए भाजपा कहीं भी पंजाब में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का जो पत्ता फेंका था, उससे जाहिर है कि कांग्रेस जो भाजपा है वह भी अपने पत्ते खेलने के लिए पूरी तैयार है। अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर कल आएंगे, कल वह अपने नेताओं से भी मिलेंगे, अपने समर्थकों से भी मिलेंगे और मीडिया से भी मुखातिब होंगे। हमने कई सीनियर नेताओं से भी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।